everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next video in the series of topic-wise current affair MCQs. Now in this series we are completing the topic-wise current affairs of past 1 year. Now initially we have already done the national international appointments, sports, science and tech, summits, prize, rankings. All of this has been completed. In the today's lecture we are going to complete the economy questions that are in total of 150. Now in addition to that, I'd like to tell you that with the current affairs I'll also tell you the static points so that आपका revision बहुत better तरीके से हो जाए. So let us start our today's session. Let us start with our first question. Now if you want the PDF of this complete series, the link is mentioned in the comment section, pinned comment section. Now, according to the National Statistical Office, NSO, what was India's real GDP growth rate in the first quarter of financial year 26, that is April to June 2025? So the real GDP growth rate was 7.8%. Now the purpose to add this question was to explain that the National Statistical Office is newly formed. 2019 में this office was created. Now this directly comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation, and it was created by merging the two departments, that is the National Sample Survey NSSO and the CSO और दी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. सबसे इंपॉर्टेंट आपके बारे में आपको ये जानना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस whole question is about the real GDP. You have to know about the real GDP as well as the nominal GDP. Now, real GDP क्या होती है? The GDP that is adjusted for inflation, जो inflation के लिए adjust होती है, and the nominal GDP is one that is not adjusted for inflation. Because real GDP inflation के लिए adjusted है, so the data of the or the percentage of the real GDP is generally lower because ये adjusted है. On the other hand, the percentage of normal GDP is higher because it is not adjusted for inflation. ओके, ये दो पॉइंट्स आपके लिए जानना ज़रूरी है. एंड जीडीपी आपको पता होगा, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ये हमारी जीडीपी होती है. ठीक है, समझ आ गया. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. For the first time in India, the collection from which tax category surpassed the corporate tax collection in financial year 2024? Now this is the PIT और द पर्सनल इनकम टैक्स. यहाँ पे जो कंसेप्ट मुझे आपको बताना है वो बताना है अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब गवर्नमेंट जो है वो दो तरह के टैक्स इम्पोज करती है. नाउ द डायरेक्ट टैक्स, दिस इंक्लूड्स द इनकम टैक्स, दिस इंक्लूड्स द कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है जो कंपनीज पे करती हैं. इनकम टैक्स वो टैक्स है जो इंडिविजुअल्स पे करते हैं अपनी इनकम के ऊपर. ओके, यहाँ पे एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है. जितनी भी हम सिक्योरिटीज यानी स्टॉक्स में डील करते हैं, दीज स्टॉक्स पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यहाँ पे इम्पोज्ड होता है. एंड ऑल दीज थ्री, दैट इज द कॉर्पोरेट, पर्सनल इनकम टैक्स एंड द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स. बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में. सो द लार्जेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी जो है, दिस इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, वो है कस्टम ड्यूटी. अब कस्टम ड्यूटी इम्पोज किस पे होती है? इट इज इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री. Another example of indirect tax is the excise duty. Now the excise duty is imposed on the goods manufactured within the country. बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एक्साइज ड्यूटी दो प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा लगाई जाती है. फर्स्ट वन इज अल्कोहल एंड सेकेंड वन इज फ्यूल. ओके, समझ आ गया. एंड फोर्थ इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो दैट इज स्टैंप ड्यूटी.
एंड स्टैम्प ड्यूटी जो है दैट इज इम्पोज्ड ऑन द लीगल डॉक्यूमेंटेशंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको स्टैम्प ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए कि स्टैम्प ड्यूटी जो है दैट इज लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी को कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। इतने पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं जीएसटी के बारे में फैक्ट आपको बताऊं तो सबसे पहली बार फ्रांस में जीएसटी इम्पोज किया गया था। ओके, इंडिया में दिस केम बाय द 101st अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी वाज इम्पोज्ड बाय द 101st अमेंडमेंट एक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया है। सबसे ज़्यादा इनकम होती है गवर्नमेंट को पर्सनल इनकम टैक्स से, देन है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सरप्लस ट्रांसफर अनाउंस्ड बाय द आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। सो द अमाउंट ऑफ surplus that was transferred by RBI to the central government was 2.69 lakh crore। अब ये जो ट्रांसफर RBI, the amount that the RBI transfers to the central government is mentioned under section 47 of the RBI Act, section 47 of the RBI Act of 1934, and RBI was established also by this act। okay, अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताऊं या आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, सो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था हमारा 1949 में। इसके एडिशन अगर मैं बात करूं, आरबीआई के प्रेजेंटली गवर्नर कौन है, तो ये हैं संजय मल्होत्रा। एंड आरबीआई इज ऑल्सो द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब है दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैंकर टू दी बैंक्स। जैसे बैंक्स हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, आरबीआई इन बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। इन एडिशन टू दैट आरबीआई इज ऑल्सो द मैनेजर ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व्स, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। दो एक्ट हैं जिसके अंदर आरबीआई के पास पावर है टू मैनेज दिस फॉरेक्स। वन इज द फेमा एक्ट एंड अनदर वन इज फेरा एक्ट। ओके, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग आरबीआई। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। सो इंडिया हैज सरपास्ड जापान। रिसेंटली प्रेजेंटली अभी इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड नंबर पे जर्मनी है, बट इट इज़ बिलीव्ड दैट 2027 to 2030 के अराउंड इंडिया विल सरपास जर्मनी टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आईएमएफ का जिक्र है, आईएमएफ इज मेंशन्ड नाउ। आईएमएफ के बारे में अगर बात करें तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूं, व्हेन वाज एक्चुअली दिस आईएमएफ इस्टेब्लिश्ड, सो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, यू नीड टू नो। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ को स्टैब्लिश करने की बातचीत की गई थी इन द ईयर 1944 एंड 1945 में द आरबीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस, सॉरी नॉट आरबीआई, आईएमएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। इन एडिशन टू दैट आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर्स ऑफ द आईएमएफ व्हिच इज सिचुएटेड इन द वॉशिंगटन। ओके, another important fact you need to know about one important report that is released by IMF, that is the World Economic Outlook। ओके, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, सो दिस इज रिलीज बाय द IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which entity became the first major Indian e-commerce firm to receive a non-banking financial company license from the RBI? Now the correct answer is Flipkart। Now I need to tell you here about the NBFCs। सबसे पहले the NBFCs are regulated by the Banking Regulation Act of year 1949 and this is under the direct regulatory control of the RBI। So some of the features and characteristics of the non-banking financial companies are they provide loans। ओके, ये तो लॉजिकल है, they provide loans। बट यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनके पास जो है वो
डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की पावर नहीं होती है. इट मीन्स दैट दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. Another important fact is that you have you have heard about the organization DICGC, which provides the insurance against the deposit of the public in banks. Now, अगर बैंक जो है वो bankrupт हो जाता है और the bank is unable to pay the money, then what happens is that DICGC covers some amount of money. ठीक है, वो अमाउंट कितना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके, but DICGC, because NBFCs cannot accept deposits, so DICGC का जो कवरेज है ना, that also does not apply to the NBFCs. ओके, तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से ये पॉइंट. नेक्स्ट है, इन जून 2025 द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कट द रेपो रेट टू व्हाट परसेंटेज. सो 5.50 ये जून में था, बट एज ऑफ दिसंबर 2025 की अगर मैं बात करूँ ना, तो प्रेजेंटली द रेपो रेट इज अराउंड 5.25%. अब यू नीड टू नो अबाउट दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. सो फॉर्मेशन का ईयर क्या है? सो द MPC कमेटी वॉज formed in the year 2016. Basically 6 members are there in this committee. 3 of these members are from the RBI and 3 members are nominated by the government of India. And what does this committee actually do? तो प्राइमरी काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम है. ओके, थ्रू व्हाट मेजर्स? थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स. अब मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्ड हमारा क्या है यहाँ पे? तो रेपो रेट है. सो व्हाट एक्चुअली इज रेपो रेट? नाउ दिस इज द रेट एट विच the banks take overnight loans from the RBI. So through repo rate, because अब मैं आपको फंक्शनिंग भी यहाँ पे बता देता हूँ एग्जांपल के थ्रू. मान लेते हैं रेपो रेट इज इंक्रीज्ड बाय द RBI. सो जब रेपो रेट इंक्रीज होगा, इट मीन्स दैट द बैंक वुड हैव टू पे मोर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. मोर इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक्स को टू द RBI. सो व्हाट दे एक्चुअली डू, व्हाट they'll do is that they will reduce the lending. They will borrow less, so they will lend less. Okay, so this is the basic idea about the repo rate. Which country overtook Japan to become the world's largest creditor nation in 2024? So this is Germany. In Japan has become the Germany has overtaken Japan to become the largest creditor country. Under the proposed GST 2.0 reform, what is the proposed tax slab for essential goods? So this is essential goods के लिए 5% का यहाँ पे टैक्स रेट है. अब मैं बताता हूँ आपको GST 1.0 और द फॉर्मर GST. इसमें बेसिकली हमारे 5 रेट्स थे. 0% का एक रेट था, एक 5%, 12%, 18% and 28%. What has happened in the GST 2.0 reforms has that 4 rates हैं अब. 0%, 5% for the essential goods, 18% for most of the goods and service, and there is a additional 40% tax rate for the luxury and sin goods. Now sin goods are those who impact the society negatively, such as tobacco and all. तो इन पे जो है वो 40% का टैक्स रेट है. So this is what you need to get an idea about. नेक्स्ट है हमारा, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल क्रिटिकल मिशन विथ अ टोटल आउटले ऑफ रफली हाउ मच. सो द इम्पॉर्टेंट हियर इज द आउटले अमाउंट दैट इज अराउंड 34,300 करोड़. नाउ यहाँ पे आपको नेशनल क्रिटिकल मिशन के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज कि इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 30 critical minerals and the target is to be self-reliant in these minerals. ओके, नाउ यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल मिशन का एम ही है हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स. अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो चाइना है. एंड हाउ मेनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर देयर? 17 एलिमेंट्स हैं. ओके, ये पॉइंट यहाँ पे आपको पता होना जरूरी है. नेक्स्ट इज विच स्टेट टॉप द नीति आयोग इनॉग्रल फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ 2025? सो ये है Odisha. Odisha has topped this physical health index. Now, in addition to that, नीति आयोग के बारे में आपको पता ही होगा अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं. 2015 में it was formed
and it replaced the formerly known as planning commission. एंड अगर मैं प्लानिंग कमीशन की बात करूं तो टोटल कितने 5 ईयर प्लान्स आए थे, तो टोटल 12 5 ईयर प्लान्स रिलीज किए गए थे. In addition to that, Niti Aayog also releases the Sustainable Development Goal Index, जिसमें कि इंडिया का रैंक क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जिसमें कि उत्तराखंड एंड केरला ने टॉप किया था. एंड इफ आई टेल अबाउट द बॉटम पोजीशन, द लोएस्ट रैंक वाज अचीव्ड बाय बिहार. ओके. In addition to that, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज ऑल्सो रिलीज बाय द नीति आयोग. नाउ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो इंडिया में रिलीज होता है, इसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं. ओके. ऑन दी अदर हैंड, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो ग्लोबल लेवल पे लॉन्च होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 इंडिकेटर्स. दो एडिशनल कौन से इंडिकेटर ऐड होते हैं इंडिया वाले रैंक, इंडिया वाली रिपोर्ट में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. Next is, what is the name of the new maritime focused NBFC launched by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways? So Sagarmala project, as the name suggests, is related to the ports. So B is going to be the correct answer. Also अगर मैं बात करूं who is the Minister of Ports, Shipping and Waterways, so Sarbananda Sonowal. Okay, he is the Minister of Ports. Ports की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, देयर आर बेसिकली 12 मेजर पोर्ट्स एंड यहाँ पे सम ऑफ द माइनर पोर्ट्स आर ऑल्सो देयर. आपको पता होना चाहिए द मेजर पोर्ट्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एज जितने भी माइनर पोर्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप टू ऑलमोस्ट विच लेवल, तो $690 बिलियन तक ये डिप हुआ था. नाउ अभी प्रेजेंटली $800 बिलियन क्रॉस भी किया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया में कौन मैनेज करता है, तो आरबीआई मैनेज करता है. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉज द टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26. सो टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया इज यूएसए. अब सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में हमारा सिंगापुर है. अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. यू शुड नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन एफडीआई एंड यू शुड नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन एफपीआई. एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. बेसिकली एफडीआई में क्या होता है ना, कैपिटल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है एंड 10% से ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग्स होती हैं. बट एफपीआई इज ऑल्सो नोन एज द हॉट मनी. यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता है, सो दिस इज मोर वोलेटाइल एंड दैट इज द रीजन वाई इट इज नोन ऑल्सो नोन एज द हॉट मनी. ओके. नेक्स्ट देखते हैं, what was India's current account deficit as a percentage of GDP? This was 0.2%. बट यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली दो अकाउंट्स होते हैं. वन इज द कैपिटल अकाउंट, अनदर वन इज द करेंट अकाउंट. ओके. कैपिटल अकाउंट होता है और करेंट अकाउंट होता है. ठीक है, डिटेल इसकी आपको जानना ज़रूरी नहीं है. ये जब मैं यूपीएससी की करंट अफेयर्स लेके आऊँगा ना, उसमें आई टेल यू इन द डिटेल अबाउट द कैपिटल अकाउंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसमें कि एफडीआई होता है, एफपीआई होता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर इन कैपिटल अकाउंट. एंड करेंट अकाउंट में क्या क्या होता है, ये यूपीएससी सेंट्रिक एग्जाम्स में फोकस करेंगे. अभी इसको ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे बिकॉज ये सीरीज़ की रिक्वायरमेंट कुछ और है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द हुरन इंडिया फैमिली बिजनेस लिस्ट, which family holds the top position? So ये है अंबानी family holds the topmost position. Which company announced the acquisition of Italy's Iveco Group commercial vehicle division for 3.8 billion euros? So ये टाटा मोटर्स ने स्पेन की इवेको ग्रुप को के साथ एक्विजिशन अनाउंस किया है. Which bank received in principle approval from the RBI to transition into a universal bank? This is the AU Small Finance Bank and this question is important. अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, RBI तो NBFCs के साथ डील करता ही है, इसके साथ साथ पेमेंट बैंक्स एंड पेमेंट
से रिलेटेड जो जितने भी अभी नए बैंक्स आए हैं इनको भी रेगुलेट करता है। कौन से एक्ट से? अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर द सब्सटैंशियल इंटरेस्ट डिफाइंड अंडर द बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025। अब बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको पहले बताया था 1949 के अंडर आया था, जिसके थ्रू एनबीएफसी को हमने देखा था कि आरबीआई जो था वो रेगुलेट करता था। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की न्यू लिमिट क्या डिफाइन की गई है? सो दिस हैज बीन डिफाइंड टू 2 करोड़, पहले 5 लाख थी। Now, which state became the first miscellaneous NBFC in India to cross a turnover of 1 lakh crore? Very, very important. Okay, this is the Kerala State Financial Enterprise. The WPI inflation rate in India for August is 0.52%. बट यहाँ पे आपके लिए ये फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ जो आरबीआई इन्फ्लेशन काउंट करता है और दी आरबीआई इन्फ्लेशन जो मेजर करता है एंड जिसके मैट्रिक्स को माना जाता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ओके, नाउ होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि गुड्स की वैल्यू बिस इंक्लूड होती है, सर्विसेज इंक्लूड्स नहीं होती हैं। बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। इन एडिशन टू दैट अगर मैं बात करूं सीपीआई की, तो आरबीआई जो मेजर करता है इन्फ्लेशन इन इंडिया, इट इज मेजर्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओनली। ओके, नेक्स्ट इज नाउ द यूएसए नेशनल डेट क्रॉस्ड माइलस्टोन फिगर इन 2025। सो 37 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट क्रॉस किया है यूएसए ने। अब यूएसए ने बिकॉज देयर नेशनल डेट इज सो हाई टैरिफ्स इम्पोज करना शुरू किया है, एंड दैट इज द रीजन वाई इंडिया पे भी 50% टैरिफ्स वेयर इम्पोज्ड। 25% तो प्राइमरी टैरिफ्स थे, सेकेंडरी टैरिफ्स 25% के इम्पोज हुए थे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा एक जीके का फैक्ट बताता हूँ आपको कि यूएसए एंड कनाडा शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। विच इंडियन स्टेट इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल सर्विस? सो दिस वॉज बिहार। इसके पहले ये नमो भारत रैपिड रेल गुजरात में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एंड बिहार में जो सर्विस स्टार्ट हुई है इट इज़ द फर्स्ट ऑफ बिहार एंड सेकेंड इन इंडिया। ओके, नाउ इन एडिशन टू दैट RRTS भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन विच हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन न्यू दिल्ली टू मेरठ। ओके, according to the World Bank, India's extreme poverty rate dropped to what percentage in 2022-23? So it has been dropped to 5.3%. अब आपको पता होना चाहिए पोवर्टी से रिलेटेड कुछ कमिटीज दैट वेयर फॉर्म्ड इन द प्रीवियस टाइम्स। सबसे पहले तो तेंदुलकर कमेटी जो है ये अराउंड 2009-2010 के टाइम पे फॉर्म हुई थी, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पोवर्टी। देन देयर वाज हाशिम कमेटी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पोवर्टी। ओके, now the Reserve Bank of India announced a record surplus transfer of how much to the center in the financial year? To 2.69 lakh करोड़ का ट्रांसफर यहाँ पे अप्रूव हुआ है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट इज which company became the world's first publicly traded company to cross a 4 trillion market capitalization? So ये है Nvidia। Okay, next है the draft proposed the RBI proposed a draft loan to value capital of what percentage for gold loans? So 75% पे इसको फिक्स किया गया है। In June, the RBI cut the cash reserve ratio by how many basis points? So 100 basis points इसको reduce किया गया था। Now, which Indian bank listed green bonds on the National Stock Exchange in the gift city? So TFCC Bank, which is of Sri Lanka, इन्होंने अपने green bond को list किया है in the gift city. Now, where actually is this gift city? So this is in
गांधीनगर इन गुजरात। ओके, इन एडिशन टू दैट अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है दैट इज द भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1875। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। एंड इसके बाद एनएससी वाज फॉर्म्ड एट अ लेटर टाइम। Now, Union Cabinet increased the fair and remunerative price for sugar cane to what amount? So, rupees 355 per quintal. Now, important point to know here is about the FRP. See, MSP के बारे में आपने सुना होगा, which is the minimum support price. Now, this is provided on 12 cereals. Okay, total 12 food products पे जो cereals हैं इन पे ये दिया जाता है, which also includes some of the oil seeds product. Total 22 हैं. Now this is given on these products. On the other hand, FRP is just like a MSP that is given on sugarcane. तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि FRP किस चीज़ पे दिया जाता है, या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर MSP क्या है। ठीक है, MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, FRP इज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। सो यहाँ पे जो डेटा है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है टू नो अबाउट द एफआरपी एंड द एमएसपी, एंड इट इज डिसाइडेड बाय सीएसीपी। ओके, सीएसीपी इज अ कमिटी, तो ये फिक्स करती है कि कितना एमएसपी देना है या एफआरपी देना है। विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिवाइज्ड द जीडीपी फॉरकास्ट, ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 to 6.5% इन सितंबर? तो दिस इज वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक के कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इनमें से इंडिया कौन से इंस्टीट्यूशन का मेंबर नहीं है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ये मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशन वाले करंट अफेयर्स की वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ, तो अगर आपने वो सीरीज देखी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर लोगे। Next is the USA Congress passed the One Big Beautiful Bill Act imposing a 1% tax on what? So 1% tax has been imposed on the remittances. Remittances means what? कि मान लेते हैं there is some person of India who is residing in USA to earn some money for his or her family. Okay, so what happens is that the money that he earns, he sends it back to India. Okay, and this money that is being sent to India, these are known as the remittances. So USA has imposed 1% tax on these remittances only, and it is going to significantly impact India because India में बहुत ज़्यादा लोग USA रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग UAE रहते हैं. In fact, the highest population that is living outside India is in UAE. Okay, so this is very much important, and important है ये, that is why I have mentioned it. Which country became the 101st WTO, that is the World Trade Organization member, to accept the fish agreement on fisheries subsidy? So this is the Nicaragua. निकोरागुआ ने एक और निकोरागुआ की एक ला प्रिंसा जर्नल है, दिस हैज़ वॉन द प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन। इन दी April 2025 monetary policy, the RBI shifted its stance from neutral to accommodative. अब यहाँ पे न्यूट्रल मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब कि neither it is positive neither it is negative. So what happens in this is कि फ्यूचर में आरबीआई का जो स्टैंस होने वाला है ना मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, वो न्यूट्रल रहने वाला है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। टाइटनिंग का क्या मतलब है? दे आर गोइंग टू टाइटन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द क्रेडिट इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट टू गेट फॉर द बैंक्स। ओके, एंड दिस इंडिकेट्स दैट द लोन्स वुड गेट very much higher, the EMIs would get very costly. Now calibrated tightening में tightening होती है but इतना नहीं होता, it is calibrated. Hawkish is another term for inflation, कि एक चेक रखना on the inflation. So these are the different stances that are taken by RBI. So अगर आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं ना, the terms like accommodative, hawkish, calibrated tightening are used in which context? तो वहां पे you can answer that monetary policy के context में these terms are used.
हालांकि व्हेन विल स्टडी यूपीएससी कम करंट अफेयर्स एंड जो हायर लेवल ऑफ करंट अफेयर्स करेंगे ना, वो सीरीज सबके लिए होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं स्टैटिक को बहुत डीपली कवर करूंगा करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो मतलब ऐसा हो जाएगा आपको कि आपको स्टैटिक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है तो उसके रिलेटेड सारा कुछ ही मैं उसमें इंक्लूड करूंगा। अगर बहुत सारे लोग आप लोगों में से इंटरेस्टेड हो इस तरह के कंटेंट के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, सो दैट आई कैन प्लान दैट सीरीज एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि अगर इतने डेप्थ में आपने पढ़ लिया ना, तो करंट अफेयर्स तो क्या, स्टैटिक भी आपका मिस नहीं होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इफ़ यू वांट सच अ सीरीज और नॉट। नाउ इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन मार्च फेल टू व्हाट लेवल? सो 3.34% पे इन्फ्लेशन फॉल किया। What is actually this inflation? Inflation is the increase in the price of goods and services. It is a general increase over the time, increase in the prices of goods and services. अभी इन्फ्लेशन भी बहुत तरह की होती है। एक होती है डिमांड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट मीन्स व्हाट, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम है। ओके। देन देयर इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश में क्या होता है कि द कॉस्ट टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट इज वेरी मच हायर, एंड ड्यू टू दैट रीजन द प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग अवेलेबल इन द मार्केट, और इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। ओके। एक स्क्यूफ्लेशन भी होती है। स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है? स्क्यूफ्लेशन में होता है कि जो क्वांटिटी है ना, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया जाता है, बट प्राइस जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे आपका लॉस ही हो रहा है ना। इन जनरल द प्रोडक्ट इज गेटिंग वेरी मच कॉस्टली बिकॉज द क्वांटिटी हैज बिन रिड्यूस्ड। तो दिस इज क्यूफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन भी होता है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में अभी आप मत जाओ, इसको हम अलग से सीरीज में कवर करेंगे, जिसमें मैं सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही डीपली कवर करूंगा। ओके। विच स्टेट अचीव्ड अ रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 9.69%, द हाइएस्ट अमंग द इंडियन स्टेट्स? दिस इज तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ना। तमिलनाडु के एक रामसर साइट का भी नाम आप जान लो, जिसको अभी रिसेंटली इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ रामसर वेटलैंड, विच इज़ सगरकोट्टई। ठीक है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। The center announced plan to own nearly 49% of which telecom company by converting dues into equity? So this is Vodafone Idea. Okay, because Vodafone Idea is suffering high losses due to the tough competition that is being given by Reliance Jio and Airtel. तो इन दोनों का तो पहले मर्जर हुआ, पहले वोडाफोन एंड आइडिया वेयर सेपरेट, फिर इनका मर्जर हुआ, एंड नाउ गवर्नमेंट इनको ओन करने जा रही है। BSNL तो already it is government owned. Now this is done in order to sustain and in order to get a competitive market. मोनोपोली ना हो जाए। अभी अगर मोनोपोली हो जाएगी तो फिर कंपनीज अपने हिसाब से प्राइसेस को इंक्रीज करेंगी, एंड पीपल हैव टू बाय दिस बिकॉज दे विल नॉट हैव अ सब्सटीट्यूट। दिस आई एम टेलिंग यू विथ एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल मोनोपोली का एग्जांपल लूँ ना मैं, तो IRCTC देख लो आप, या इंडियन रेलवेज देख लो। अब क्या रेलवेज का सब्सटीट्यूट है? नहीं है। रिसेंटली रेलवेज हैज इंक्रीज्ड द फेयर बाय 20 पैसे आई थिंक पर किलोमीटर। सो क्या इस पे आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। एयरवेज की अपनी मोनोपोली है, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो आप रेलवेज में नहीं जा सकते हो, तो ये मोनोपोली हो जाती है। तो जब मोनोपोली होती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल एयरवेज का भी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इंडिगो क्राइसिस का। इंडिगो क्राइसिस में क्या हुआ? सिर्फ एक एयरलाइन की मैनेजमेंट की फेलियर की वजह से, और आई थिंक दैट इट वाज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, कि बताने के लिए कि वी आर टू बिग टू फेल। ओके। तो ये क्राइसिस से बचाने के लिए, ये क्राइसिस को इन्होंने दिखाने के लिए, इतना ज़्यादा क्राइसिस हो गया कि अभी रिसेंटली 3 नई एयरलाइंस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। एक तो है मेरे ख्याल से अल हिंद है, एक है संक एयरलाइन, एंड एक एयरलाइन और है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी है। सो अगर आप कुछ भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, तो ट्राई टू लिंक इट विथ द इकोनॉमी इन जनरल। अगर आप अपने इंडिया को देख के और इंडिया से एग्जांपल्स लेके उसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, आई कैन गारंटी यू दैट कि आपका इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो दिस इज द राइट वे टू स्टडी, आई गेस इट इज द राइट वे टू स्टडी। सिर्फ याद या रटने से कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से।
नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू, जहां पे याद करने की जरूरत है वहां पे आपको करना पड़ेगा, बट द थिंग्स दैट यू कैन रिवाइज कंसेप्चुअली यू शुड. According to the RBI data, remittances from which group of countries were surpassed by advanced economies? So, गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज. मैंने आपको क्या बोला था, यूएई में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो रेमिटांसेस भी तो वहाँ से आएंगे ना सबसे ज़्यादा. तो दीज आर द गल्फ कंट्रीज. विच स्टेट hosted the Advantage Assam 2.0 Investment and Infrastructure Summit? तो नाम में ही है, दिस इज असम. एंड गुवाहाटी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अभी इनॉग्रेट हुआ है. The union government is considering reducing state share of central taxes from 41% to what percentage? Now, 40% पे रिड्यूस करने का यहाँ पे प्लान है. अब ये कौन सा टैक्स है? तो यहाँ पे आता है रोल फाइनेंस कमीशन का. अभी आप बोल रहे होगे कि ये तो टैक्स की बात हो रही है, फाइनेंस कमीशन कहाँ से आ गया? सो हियर दिस इज अ पॉइंट वेयर द कंसेप्ट लाइज. फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होती है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. मेन काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? टू डिमार्केट और टू डिवाइड द टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. इसके अलावा इनकी जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, ये जो भी बताते हैं ना, दीज आर एडवाइजरी इन नेचर. एडवाइजरी इन नेचर होती है, कंपलसरी नहीं होता है इनको मानना. तो फाइनेंस कमीशन ने लास्ट ईयर 41% का ऐसा बोला था कि जितने भी टैक्स प्रोसीड है 41% शुड गो टू द स्टेट्स. एंड ये 41% कैसे आता है ना, और किस स्टेट को कितना मिलता है, इसके डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं. ये सारा कुछ थोड़ा एडवांस्ड स्टेज का है, दिस विल कवर इन अ सेपरेट सीरीज. तो ये 41% था, इसको सेंटर ने घटा के 40% देने का प्लान किया है. वाई? बिकॉज दिस फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है दैट आर एडवाइजरी इन नेचर. अगर ये बाइंडिंग होती ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 41 ही देना पड़ता. ऐसे आप अगर चीज़ों को लिंक करोगे ना, तो बहुत बेनिफिट होगा आपको. India's trade deficit in Feb 2025 fell to 14.05, the lowest in how many years? So this is the lowest trade deficit in 3.5 year. इंडिया का सरप्लस ट्रेड होता है यूएसए के साथ, नेदरलैंड्स के साथ भी सरप्लस ट्रेड होता है. डेफिसिट ट्रेड किसके साथ होता है? डेफिसिट ट्रेड हमारा चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है. एंड यहाँ पे एक और मैं बात आपको बता दूं कि इंडिया रशिया डिस्पाइट ऑफ देयर वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज, इन दोनों कंट्रीज में ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, वॉल्यूम ट्रेड की ज़्यादा नहीं है. ओके. अब इसी ट्रेड की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए रिसेंटली प्रेसिडेंट पुतिन विजिटेड इंडिया, एंड द रोड मैप हैज़ बीन लेड फॉर इंक्रीजिंग द ट्रेड. ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे ना, जब उस डील को आप देखोगे, तो वहाँ पे एक ट्रेड को इंक्रीज करने का पॉइंट होगा कि हम ट्रेड को बाई इतने बिलियन डॉलर्स हम ले जाने का टारगेट करेंगे बाई 2030. Next is, which Indian company developed the country's first hydrogen compliant pipes? So this is the Tata Steel. Now, which initiative aims to onboard 5 lakh MSME onto the ONDC network with a budget of 277 crore? So this is a question that is related to scheme. Okay, तो यहाँ पे टीम इनिशिएटिव है. ओके, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ओके. एंड एमएसएमईज के अंदर जो लोन दिए जाते हैं ना, इनकी प्राइमरी स्कीम हुआ करती थी मुद्रा स्कीम. 2015 में ये लॉन्च हुई थी. शिशु लोन, किशोर एंड तरुण, दीज आर द नेम ऑफ द स्कीम्स, नेम ऑफ द लोन्स दैट वर गिवन अंडर दिस मुद्रा स्कीम. सो मुद्रा स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएसएमईज आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. ओके. एंड इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एमएसएमईज को. Which bank launched the Har Ghar Lakhpati Deposit Scheme? State Bank of India. Also, State Bank of India is a DSIB, that is the Domestically Systematic Important Bank. अब ये बैंक कौन से होते हैं? These are considered to be too big to fail, and generally इनका जो कैपिटलाइजेशन होता है ना, वो 2% होता है of the GDP of the country. Okay. Which organization released the World Employment and Social Outlook Trends 2025? तो ILO, that is the International Labour Organization. फॉर्म कब हुई थी? 1919 में फॉर्म हुई थी. कौन सी ट्रीटी थी? तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थी. Which regulatory board set up by the Payments Regulatory Board to replace the
BPSS committee. So ये RBI है. The RBI has set up the पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट. एंड मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के में बता चुका हूं अभी कि पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का है, जिसके अंडर आरबीआई मैनेजेस द पेमेंट्स बैंक सच एज एयरटेल पेमेंट बैंक एंड बहुत सारे पेमेंट बैंक है. नेक्स्ट है विद स्टेट टॉप कैटेगरी ए इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स. सो कौन सा है यहाँ पे? मध्य प्रदेश ने टॉप किया है. मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डायमंड होता है. ठीक है, पन्ना आपने सुना होगा, तो लार्जेस्ट डायमंड यहाँ पे होता है. मैं बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है. एंड आपने खेतरी माइंस के बारे में सुना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए. The Union Cabinet approved the continuation of which scheme to ensure remunerative prices to farmers? So this is PM Asha scheme. PM Asha scheme का फुल फॉर्म क्या है? This is the प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. फुल फॉर्म याद रखना एंड ये भी याद रखना कि किस चीज़ से स्कीम रिलेटेड है. विच कंट्री बिकेम द 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री इन अर्ली 2025? सो ये सॉरी पार्टनर कंट्री की बात हुई है ना, नाइजीरिया. अगर मेंबर की बात होती तो इंडोनेशिया. इंडोनेशिया हैज बिकम द 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स. विच बैंक इंट्रोड्यूस द चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन FD फॉर दोज एज्ड 80 एंड अबव? दिस इज द IDBI बैंक. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल करेंसी लॉन्च्ड बाय बिमटेक फॉर इट्स कैंपस इकोसिस्टम? दिस इज द बिमकॉइन. एंड बिमकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी है फॉर द इंस्टीट्यूशनल सिस्टम. अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है, साइंस एंड टेक वाली वीडियो देख लो, बहुत डिटेल में मैंने बताया है क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, किन्होंने इन्वेंट किया था. नेक्स्ट इज विच इंडियन ब्रांड was ranked as the most valuable in the Brand Finance Global 500 report for 2025 टाटा ग्रुप. अभी आने वाले ना 10 क्वेश्चंस के बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, इतने अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको सॉल्व करके. तो वीडियो को आई वुड सजेस्ट दैट इकोनॉमी वाली वीडियो तो एटलीस्ट पूरी देखना आप लोग, बहुत बेनिफिट होगा आपको. इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप टू व्हाट परसेंट? 4.31%. Which country launched the Green Transition Alliance India? Very very important question. ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है. Next is India's first cooperative run CBG and potash project was launched in which state? This is also very very important question. ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने. एंड यहाँ पे कोऑपरेटिव है तो ये ध्यान में रखना, महाराष्ट्र स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया. महाराष्ट्र में भी अगर स्पेसिफिक में मैं बात करूँ तो कोपरगांव में it has been inaugurated. Next is again a very very important question. Which bank became the first in India to implement the Clari 5's National Cybercrime Reporting Portal integration solution? So ये पंजाब नेशनल बैंक. Next है the Reserve Bank of India mandated banks to use which number series for transactional calling? ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो 1600 सीरीज यहाँ पे ट्रांजैक्शनल कॉल्स के लिए यहाँ पे रिकमेंड की गई है. एंड 140 सीरीज जो है वो प्रमोशनल कॉल्स के लिए. विच स्टेट साइंड एन MOU विद गूगल क्लाउड टू लॉन्च एन AI पावर्ड एग्रीकल्चर नेटवर्क? दिस इज उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023. इंडिया का रैंक क्या है? 38th रैंक है. एंड अभी मैं आपको बता दूं रिपोर्ट्स वाली वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है जिसमें कि सारी रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हैं. आप यहाँ से जाके इन चीज़ों को रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स वाले चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज who was appointed as the new revenue secretary ahead of the union budget 2025-26? So this is Tuhin Kant Pandey. Which Indian startup became the second most downloaded food and drink app globally in 2026? So this is Zepto. Next है what was the GDP growth projection for India by the United Nations? So 6.3% का growth rate यहाँ पे recommend किया था. Which bank launched the first EAN रुपे क्रेडिट कार्ड? ये लॉन्च किया था IDFC फर्स्ट बैंक ने. The Cabinet Committee on Security approved a deal worth $7 billion to procure which aircraft? तो ये है रफेल मरीन एयरक्राफ्ट. ओके,
तेजस मार्क 2 ये इंडिजीनियसली बिल्ट है, किसने बनाया था? HAL ने बनाया था। मिग सीरीज ये बिलोंग करती है रशिया, रफेल फ्रांस। एंड अगर मैं F-18 की बात करूं, F-22 रैप्टर की बात करूं, F-35 की बात करूं, ये सारे USA के। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया को अभी अपाचे हेलीकॉप्टर्स एंड इन एडिशन चिन्हुक हेलीकॉप्टर्स ये भी मिले हैं USA से। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट? और ये रिलीज किया है FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। Now, which nation did India recently overtake to become the world's fourth largest economy? So this is Japan. Next is, what is the total financial outlay approved for the export promotion mission? अब ये exports promotion mission के लिए 25,060 crores have been allocated. The union government approved this amount to provide a digitally driven framework for export promotion over 6 years. जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए ये पैसा एलोकेट किया गया है। Which organization released the Technology and Innovation Report in 2025? So ये UNCTAD ने रिलीज किया है। What is the duration of the recently approved export promotion mission? 6 years का टेन्योर होने वाला है, starting from financial year 2025-26 to financial to 2030-31. Okay. What is India's current share in global exports of goods and services? Important question है, 2025 का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का क्या शेयर है? तो इंडिया का शेयर है यहाँ पे 2.5%। डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, स्टिल इंडिया का शेयर यहाँ पे बहुत कम है इन दी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। Which minerals were recently reclassified from minor minerals to major minerals by the Ministry of Mines? Very important question. So यहाँ पे barytes, feldspar, mica and quartz. Okay. कब किया गया इनको? This reclassification was followed the approval of the National Critical Mineral Mission. Very very important. इन चारों के नाम याद रखना। How many low performing district does the PM धन्य धान्य कृषि योजना focus on? 100 low performing districts पे this scheme is targeted. These are the underperforming districts that are trying to revitalize the agriculture through technology and resource access. यहाँ पे एक ड्रोन दीदी स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, वुमेन एम्पावरमेंट से भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। According to the World Bank, what percentage of global remittances did India secure? So इंडिया ने यहाँ पे 14.3%, मतलब सोचो सिर्फ इंडिया ग्लोबल रेमिटेंसेस की बात हो तो उसमें 14.3% शेयर तो सिर्फ इंडिया का है वहाँ पे। सो यहाँ से ही आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया के कितने लोग बाहर रह रहे हैं। Next is, what is the target nuclear power capacity India aims to achieve by 2047? This is 100 gigawatts. This question is very very important and ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे जिस भी फॉर्म में आए ये क्वेश्चन आने वाला है कि टारगेट न्यूक्लियर कैपेसिटी इंडिया की ने क्या एम किया है। ओके, एंड शांति बिल भी अभी जो आया है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सीरीज खत्म होने के बाद कुछ ही दिन में मैं करंट अफेयर सिनॉप्सिस सीरीज का अपडेट लेके आऊंगा, जिसमें मैं दिसंबर एंड जनवरी तक के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करूंगा। ओके, तो वो वीडियो में आपको शांति बिल पे क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ओवरऑल जीडीपी? तो 17% कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे एक बात आप समझो, सेक्टर्स के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन आता है। सो बेसिकली देयर आर 3 सेक्टर। सबसे पहला तो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड वन इज द टर्शियरी सेक्टर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बताता हूँ आपको मैं पॉपुलेशन के बारे में। प्राइमरी सेक्टर में अराउंड 50% से भी ज़्यादा, अराउंड 70% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज इंडल्ज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। इससे थोड़ी सी ज़्यादा सेकेंडरी में है एंड इससे थोड़ी सी कम जो है वो सेकेंडरी में, एंड देन सबसे कम जो है वो टर्शियरी में है।
स्टिल जो ये टर्शियरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर है ना, इसका कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में अराउंड 54 to 55% है, आधे से भी ज़्यादा। बट जिस सेक्टर में हमारी कंट्री के अराउंड 70% पीपल इंडल्ज हैं, वो सेक्टर सिर्फ 18 और 19 या उससे भी कम परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है इन दी ग्लोबल जीडीपी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है, 17% सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो एग्रीकल्चर पे क्यों यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, सेल्फ रिलायंस पे क्यों फोकस किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत पे क्यों फोकस किया जा रहा है, फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि इनकी इनकम डबल होगी तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्री के जीडीपी में बढ़ेगा, जो अभी बहुत कम है। अभी मोस्टली इंडिया का जो पैसा है वो सर्विस सेक्टर से ही आ रहा है, हालांकि बहुत कम लोग वहां पे काम कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी सेक्टर। सो ये कंसेप्ट है इस पूरे चीज़ का। अब आप भूलना मत, एंड जो सेक्टर्स मैंने बताया, जो मैंने बताया कंट्रीब्यूशन के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। Now, which industry was the top performer in the gross value added according to the ASI report? कौन सी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडेड है? तो बेसिक मेटल्स। Now, how many mega cities are estimated to exist globally by 2025? So, globally 33 mega cities यहाँ पे estimated है। What is the primary purpose of the BankNet initiative? So, the BankNet initiative aims at bank asset auctions. Which city was designated as a creative city of gastronomy? So, ये लखनऊ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। Next is, what is the financial allocation for the nuclear energy mission in 25-26? 20,000 करोड़ रुपीस का allocation यहाँ पे दिया गया है। How many youth does AI for entrepreneurship module aim to empower by 2035? So 1 lakh youth को empower करने का यहाँ पे target है। Which section of the Income Tax Act mention goods for which seller must collect taxes? That is the TCS. एक तो होता है TCS under IT Act, एक होता है TDS, that is tax deductible at source. So this is mentioned in section 206. Okay. Next is again a very important question. ये question पूछ सकते हैं आपसे. That is, what was the achieved percentage of ethanol blending E20 in India in 2025? 20%. ओके। टारगेट था इंडिया का कि 2030 तक हम इस E20 को ब्लेंड करेंगे, मतलब 20% ऑफ एथेनॉल विल बी ब्लेंडेड विद द पेट्रोल। बट इंडिया ने ये टारगेट यहाँ पे 2025 में ही कंप्लीट कर लिया। विच एंटिटी मैनेजेस द इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम? सो यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम आरबीआई हैंडल करता है। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वामी फंड? स्वामी फंड इज देयर फॉर स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वामी फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी पीपल लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द 2025 MPI रिपोर्ट? सो ग्लोबली 1.1 बिलियन लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। Now, this multi-dimensional poverty report, it is released by the UNDP, Oxfam, ठीक है। Now, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट ये पब्लिश करती है नीति आयोग। ओके। ग्लोबली इस रिपोर्ट के 10 इंडिकेटर्स हैं, बट इंडिया में जो ये MPI रिलीज होती है इसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज, what is the financial outlay for the centrally sponsored PM सेतु स्कीम? तो PM सेतु स्कीम के लिए the funds are 60,000 crores. Which city is currently ranked as the world's most populous city in 2025? So ये है जकार्ता। ओके, जकार्ता इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, सेकेंड नंबर पे ढाका है, थर्ड नंबर पे टोक्यो है। Now, which committee sought a comprehensive review of the GST framework in 2025? So, Public Accounts Committee. अब अगर मैं बात करूं Public Accounts Committee की, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए
some of the financial committees of the parliament. ओके, तीन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमिटीज हैं इन दी पार्लियामेंट. सबसे पहले तो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सेकंड पे आती है हमारी एस्टीमेट्स कमेटी, एंड थर्ड नंबर पे है हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी. ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. अब जो एस्टीमेट्स कमेटी होती है, दिस इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इसमें 30 मेंबर्स होते हैं. एंड ये जो 30 मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द लोकसभा ओनली. ठीक है. नाउ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 15 मेंबर्स आर देयर फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 मेंबर्स आर देयर फ्रॉम द राज्यसभा. एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, तो एस्टिमेट्स कमेटी है. सेकंड क्वेश्चन आता है कौन सी कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं दे आर फ्रॉम द लोकसभा ओनली, तो दिस इज द एस्टिमेट्स कमेटी. ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया यहाँ पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. जीएसटी की बात करें तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके बाद जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अभी जीएसटी 2.0 आया है, जिसमें 5% और 18% का टैक्स रेट तो आपको पता होगा ही. 40% भी यहाँ पे एक टैक्स रेट है फॉर द लग्जरी एंड सिन गुड्स. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. Now, the government announced setting up how many bio input resource centers? So, 10,000 bio input resource centers यहाँ पे प्रिपेयर करने का प्लान है फॉर बायोलॉजिकल फॉर्मुलेशंस फॉर नेचुरल फार्मिंग. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. विच सेक्टर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू इन सितंबर 2025? कौन से सेक्टर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस यहाँ पे दिया है? सो दिस इज द लार्ज शिप का सेक्टर. ओके, एंड दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स 1.3 बिलियन टोबैको यूजर्स लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज? सो अराउंड 80% जो है टोबैको कंजम्पशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज. Next is again a very very important question. Which state was a top performer in its group in the State Energy Efficiency Index of 2024? So ये Maharashtra is the topper. Next is what is the third stage of the PM Shri School selection methodology? So ये है challenge method. Schools are selected in the final stage based on the challenge method to fulfill the specific area. अब ये पीएम श्री स्कूल्स के बारे में आपको यहीं से पता चल जाएगा. इट इज रिलेटेड टू द एडवांसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया. नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट पास्ड बिल इन 2025 टू प्रोटेक्ट द सोशल सिक्योरिटी राइट्स ऑन ऑफ द प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स? दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये बिल यहाँ पे कर्नाटका असेंबली में पास हुआ था. What is the base year for the new electronics component manufacturing scheme 2024-2025? Okay. Now, next है हमारे पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ द कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट? और ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है. बिकॉज ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके. नाउ अभी मैं आपको ना एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ. रिसेंटली जो है वो कुछ चीज़ें रिवाइज हुई हैं इन द जीडीपी कैलकुलेशन. ओके. नाउ क्या रिवाइज हुआ है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे. अब जीडीपी जो थी, जीडीपी जो था ना, पहले जीडीपी का बेस ईयर 2011-2012 था, बट अब जीडीपी का बेस ईयर 2022-2023 कर दिया गया है. नाउ इसके अलावा एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी था, जिसका बेस ईयर जो है अब 2022-2023 कर दिया गया है. इन एडिशन टू दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी एक इंडेक्स है, जिसमें मैंने बताया आपको इन्फ्लेशन जो इंडिया में मोस्टली मेजर होती है बाय आरबीआई, इट इज़ डन ऑन दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर रिवाइज करके 2023-2024 कर दिया गया है. एंड यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है एग्जाम में.
ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, एंड इसमें भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सीपीआई पे क्वेश्चन आने का। ओके, नेक्स्ट है what percentage of total FDI inflows in 2024-25 was accounted for by the manufacturing sector? To 23.5%. What is the goal of mission for Atmanirbharta in pulses? To achieving the self-reliance in pulses. This is the scheme and this is the goal. Next है, which country holds the largest 19% of the world's copper reserve? Because copper में बहुत ज़्यादा volatility है अभी प्रेजेंट टाइम में, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइल्ड में सबसे ज़्यादा कॉपर रिजर्व्स हैं। विच मिशन वॉज लॉन्च टू एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हाई इम्पैक्ट एरियाज? सो महा मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया विच टारगेट्स द medicine technology sector. Which of the following is not one of the 4 key pillar of the leads? So direct benefit transfer, जो गवर्नमेंट पैसा देती है ना सिटीजन्स के अकाउंट में, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जैसे सिलेंडर जो है हमारा उसकी सब्सिडी होती है, ऑल ऑफ दिस क्लासिफाइज एट द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, जो 4 पिलर हैं लीड्स के वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, operating environment and sustainable logistics. In which states Fazilka and Shri Muktasar Sahib districts will be government explore potash mining? So ये दोनों districts जो हैं these are in Punjab only. Next है, what is the financial outlay for the promotion of research and innovation in pharma and medtech PRIP scheme? So 5,000 crores का यहाँ पे financial outlay है. Which body was constituted by RBI in October to oversee the payment system? This is the Payments Regulatory Board, and बहुत important question है, question यहाँ से आ सकता है। What is the primary objective of the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana? Again a very very important question. So it aims to boost the youth employment. Next is, which entity published the Consumer Price Index on the 12th of the every month? So Central Statistics Office रिलीज करता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आरबीआई इसी को यूज करता है टू कंप्यूट द इन्फ्लेशन। ओके, सो सी से कंज्यूमर है, सी से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यहाँ पे आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 0108, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्रॉपिंग इनिशिएटिव यूज्ड फॉर इन एग्रीकल्चर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज फॉर द रियल टाइम क्रॉप फोटो ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Which cities Nagar Nigam issued India's first certified green municipal bond? So गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये इशू किया है ग्रीन बॉन्ड। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज कॉपर रिजर्व आर कॉन्सेंट्रेटेड इन विच स्टेट? मैंने आपको बता ही दिया था, वो स्टैटिक में देखो कवर है वैसे ये करंट का ही पार्ट, क्योंकि कॉपर इज इन न्यूज। ओके, बट स्टैटिक के साथ इसको करोगे ना आप तो बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज, what is the primary mission of the Quality Council of India? So the primary mission is to lead the nationwide quality movement. Which organization released the technology and innovation report? This is very very important, UNCTAD ने release की है। What is the objective of the uplink initiative? This is again an important question. So innovation and startup support. नेक्स्ट है, विच सेक्टर इज द समर्थ स्कीम प्राइमरली एसोसिएटेड विथ? डेयरी सेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। सो द समर्थ इनिशिएटिव इट टारगेट्स द डेवलपमेंट एंड एफिशिएंसी विद इन द डेयरी सेक्टर। हाउ मेनी ईयर्स हैज द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन हैज बीन एक्टिव एज ऑफ 2025? सो 2020 में बेसिकली ये मिशन स्टार्ट हुआ था एंड 5 ईयर्स इस मिशन को हो गए। What rate does RBI use a macroeconomic indicator for liquidity recently mentioned in the WACR? So this is the weighted average call rate. Next is, what is the focus of We Rise initiative? Again an important question. So MSME empowerment. बिकॉज मैंने आपको बताया है कि MSME बहुत इंपॉर्टेंट है, तो MSME से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे स्कीम्स हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच एलिमेंट्स आर बीइंग एक्सपेरिमेंटली
mined from wastewater according to the recent reports. So rare earth elements, 17 rare earth elements है, ये मैं आपको multiple times बता चुका हूँ. And China is the largest reserve holding country for the rare earth elements. What is the borrowing target for the government via the treasury bill recently notified by the RBI? सो 3.94 लाख करोड़. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. ठीक है, शॉर्ट टर्म लिक्विड बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है. एंड ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है. यहाँ पे बस एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं ना, दीज डू नॉट इशूज दे डू नॉट इशू द टी बिल्स. ओके. Which rules were issued in 2025 to promote agroforestry through the felling of trees on the agricultural land? So these are the Model Rules 2025. These rules provide procedure for land registration and tree felling under the agroforestry. Next is an important question है. Question पूछ सकते हैं आपसे. What is the primary purpose of the SWA-Rail application? So the aim is to provide comprehensive rail services and grievance redressal mechanism. Which organization is responsible for releasing the Global Findex Index 2025 report? So ये वर्ल्ड बैंक है. इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज की है. What does the entity locker system aim to provide? Paperless documentation for businesses. Next है, which state became the first in India to implement scheduled caste subcategorization? Very important question है. तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर. तेलंगाना के रिस्पेक्ट में एक भू भारती पोर्टल भी है, इसको भी आप ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं. एंड ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट डुओपोली डज द G2 एंगेजमेंट इंप्लाई इन ग्लोबल अफेयर्स? वेरी इंपॉर्टेंट. सो ग्लोबल इन्फ्लुएंस वाली पॉलिसी है एंड G2 इंप्लाइज विथ यूएसए एंड चाइना. जनरली यूएसए एंड चाइना एक दूसरे के साथ नहीं जाते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं होते हैं. बट ये जो चीज़ है ना, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ पे डिनोट किया है G2 टर्म. ओके. ऑब्वियसली टू इनहेंस एंड बेटर देयर रिलेशंस विथ चाइना. Which state possesses the largest tiger population? 785 in India as of 2025. So ये largest tiger population is in Madhya Pradesh. What is the budget allocation for the constitution of Makhana board in Bihar? So Makhana बोर्ड के लिए 100 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन है. इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे टर्मरिक बोर्ड भी इम्पॉर्टेंट है. एंड मैंने आपको बता दिया है कि टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ है. सो दिस इज इन निज़ामाबाद. एंड निज़ामाबाद किधर है? तो तेलंगाना में है. ठीक है. इन एडिशन टू दैट अगर ठीक है, 2 बोर्ड्स अनाउंस हुए थे, एक तो था मखाना बोर्ड एंड दूसरा था टर्मरिक बोर्ड. ये दोनों मैंने आपको बता दिए. Which portal was launched to support the goods and services appellate tribunal? Very important question. So this is the GSTAT e-courts portal to digitize the appellate process. अब GST में बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं, बहुत लोगों को डिस्प्यूट होगा तो वो केसेस वगैरह करना चाहेंगे. सो दिस इज अ ट्राइब्यूनल दैट डज इट फॉर देम. What was the trend of the public debt found in the RBI's biannual financial stability report? Rising. अब यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई रिलीज करता है. एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? ये IMF रिलीज करती है. सो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट इज बाय 2050 मोस्ट लो इनकम कंट्रीज आर अनलाइकली टू अचीव द स्टेटस which status according to the global economic overview? तो मिडिल इनकम स्टेटस तक वो नहीं पहुंच पाएंगे. What is the funding structure of the Vibrant Village program? So this is a 100% सेंटर सेक्टर स्कीम. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से ना आप 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर सकते हो. एक तो है सेंटर सेक्टर स्कीम, दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंटर सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें 100% जो एक्सपेंसेस हैं दैट आर borne by the center only. Centrally sponsored में क्या होता है? 60% of the centers are borne by the center and 40% are borne by the state government. Okay. What percentage of India's GDP was state debt in
2022-23 to 22.17%। ठीक है, FRBM एक्ट है 2003 का, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं जब स्पेसिफिकली कवर करूँगा ना नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो इन द सेंस कि एक बढ़िया इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज लॉन्च करेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। अगर चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत बढ़िया सी सीरीज में लेके आऊँगा। Which cabinet approved modernization targets water management in rural farming areas? So this is the MCADWM, that is the modernization of command area development and water management. This was approved to improve the irrigation efficiency. Which framework is the environmental accounting on forest 2025 report based on? So ये based है UN system of environmental economic accounts पे। Next है हमारा What is the primary focus of PM मित्र स्कीम? इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल पार्क्स यहाँ पे डेवलप करने का टारगेट है। सो बी हमारा करेक्ट आंसर है। 2025 SDG रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी? 8.9%। अगर किसी का भी मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पे इसको आप कोट कर सकते हो। SDG रिपोर्ट में इंडिया का रैंक भी कोट कर सकते हो जो कि 99th था। इसके अकॉर्डिंग SDG समिट कहाँ पे हुई थी? तो न्यू दिल्ली में हुई थी, ये भी पता होना चाहिए बिकॉज ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का गोल कौन सा है SDG में? टोटल 17 गोल्स हैं, तो SDG फर्स्ट है जो हमारा, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से रिलेटेड है। विच कंट्री इज आइडेंटिफाइड एज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट, अ क्रिटिकल मिनरल? सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये क्वेश्चन UPSC में भी आ चुका है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले फॉर द रिस्ट्रक्चर स्किल इंडिया प्रोग्राम टिल 2026? सो 8,800 करोड़ का यहाँ पे फाइनेंशियल आउटले है। विच कंट्री बिकेम द 9th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? अल्जीरिया। उज्बेकिस्तान भी एट अ लेटर टाइम बना था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। व्हाट is the objective of the mission for cotton productivity? So improving the yields of agricultural yields for cotton. Which organization released the agricultural outlook report? So OECD and FAO jointly इन्होंने रिलीज किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है। The primary mission of the National Road Safety Board is to formulate safe standards for road use. Next है which fund is overseen by the Ministry of Mines to benefit the communities affected in mining? Important question है, this is the District Mineral Foundation Scheme. By 2050, what percentage of India's GDP is expected to come from cities? 75% of the GDP is expected to come from cities. Financial allocation for the PM Asha scheme during the 15th Finance Commission cycle. Important question है। सो कितना एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है? 35,000 करोड़। अगर मैं एक और पॉइंट आपको बताऊं यहाँ पे, तो 16th फाइनेंस कमीशन अभी स्टैब्लिश हो चुकी है। हु इज द चेयरमैन? तो अरविंद पंगारिया जी इज द चेयरमैन। Which overseas universities have been authorized to open branch campuses in GIFT City? So ये है Queen's University of Belfast and Coventry University. Which policy aims to reduce logistic cost and improve efficiency across India? तो ये है National Logistics Policy. Now which organization released the World Economic Outlook report? IMF release करती है ये, okay. What is the additional outlay approved for the प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? तो 1920 करोड़ का एडिशनल आउटले अप्रूव किया गया है। And the last question in today's class is what macroeconomic measurement increased by 11.89% in the ASI report? So GVA, that is the gross value added, यहाँ पे increase हुआ है by 11.89%. So with this we have done this chapter, we have finished this इकोनॉमी वाला सेक्शन। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है, कमेंट करके बताना आप लोग वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर कर सकते हो इस वीडियो को इफ़ यू लाइक विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।